جو تیسری فائل تھی وہ گزشتہ 1.5 سال سے پروسیس میں ہے اور اس پہ نہیں کام ہو رہا تھا. میں الفن بھی کہنے کے لیے تیار ہوں. کل آٹے کی الوکیشن کے بڑھانے کے حوالے سے کوئی چیز ہمارے درمیان ڈسکس ہوئی تھی. اللہ کی عزت کی قسم ہے انہوں نے اس طور پہ مجھے اگنور کیا جیسے وہ مجھے جانتے ہی نہیں. ہاں وہ ڈیلرشپ کی ایک فائل 10-15 دن نہیں بلکہ پچھلے مہینے میں 18 تاریخ کو لے کے آئے تھے. وہ اللہ گواہ اس بات کا کہ وہ بات کو اب ٹویسٹ کر رہے ہیں, ادھر ادھر گھما رہے ہیں اس کو. میرے کو اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کمپلیٹ کرنا. میں آئے تھے جناب دستخط کرنی تو لکھی دیا میں جناب کہ میں مینیج کرنا. ایک منتخب کونسلر ہے, آپ اس کے گریبان کو بھی پکڑیں, 1.5 ماہ آپ اس کو چلائیں گے, اس کے بعد آپ قسمیں اٹھا کے آپ وہ پاک صاحب بن جائیں. کشمیر دھرتی کے تمام دیکھنے والوں کو عمر خیام کا سلام. اور اس وقت میں موجود ہوں میونسپل کارپوریشن راولاکوٹ کے دفتر کے باہر, اور میرے ساتھ موجود ہیں کونسلر میونسپل کارپوریشن راولاکوٹ سردار آفتاب عارف صاحب. اور آفتاب عارف صاحب کے بارے میں جو چیزیں آج سے 2-3 دن قبل سے ایک ایشو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے, جن لوگوں کو اس سے آگاہی نہیں ہے وہ اس سے قبل کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور گزشتہ روز کے ویڈیو میں جو ڈی ایف سی صاحب تھے اور جو ایک آئی وٹنس کے طور پہ لوکل گورنمنٹ کے جو ایک پروجیکٹ مینیجر جو آئے تھے ان کا بھی انٹرویو آپ نے سنا. ان کا جو موقف تھا اس کیس کے حوالے سے جو سوشل میڈیا کی زینت بنا, اور کہا گیا کہ آفتاب عارف صاحب اپنے علاقے کے آٹے کی الوکیشن کے مسائل کو لے کے ڈی ایف سی صاحب کے دفتر میں گئے اور انہوں نے ان کو اریسٹ کروایا. اس پہ جو دونوں سائڈ کا موقف تھا وہ آپ نے وہاں سے سن لیا. اور اب آفتاب عارف صاحب کا اس حوالے سے کیا موقف ہے آج اس پہ ہم گفتگو کریں گے. آفتاب صاحب بہت شکریہ. اب اس سارے سلسلے کے بعد آپ کی زبانی لوگ سننا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں کہ ایشو تھا کیا یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر خیام آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کے تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. میں جو بات کروں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں گا, اور پوری دیانتداری اور ایمانداری کو اس میں بیچ میں اس لیے رکھوں گا کہ یہ کوئی میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے جو ایک ایشو بنا ہوا ہے. یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو یہاں راولاکوٹ کے اندر اس ایشوز کو لے کر ایک تحریک چلی تھی, اور جو آج تک ہے, اور جو اس پہ میں ثبوت بھی مہیا کروں گا کہ جو ڈی ایف سی صاحب کے اس میں جو رول تھا وہ کیا تھا ان کا. میں کیونکہ اس مدعے کی طرف آؤں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا جو انٹرویو ہے وہ اتنا لانگ بھی نہ ہوا. یہ کہ جب یہاں پہ الوکیشن کو بڑھایا گیا, تحریک چلی اور تحریک کے نتیجے میں الوکیشن کو بڑھایا گیا, تو ہمارا چک ڈیپو ہے جس کے ساتھ ہماری 7 وارڈز لگ رہی ہیں. متحدہ ماس چک نے ایک پروگرام رکھا جس میں ہم 7 کونسلرز کو انہوں نے مدعو کیا, اور اس پروگرام میں ہم لوگ گئے, اور وہاں پہ جو بات سامنے آئی اس میں یہی بات سامنے آئی کہ جی جو ہماری الوکیشن تھی اس کو کم کیا گیا اور ہمیں جو پراپر آٹا جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے. تو میں نے اسی اجلاس میں ساتھ یہ بات رکھی کہ آپ لوگ تو چلیں, جو مختلف وارڈز کے جو کونسلرز میرے دوست یہاں پہ میرے بھائی میرے محترم کونسلرز ہیں وہ تو الوکیشن کی بات کر رہے ہیں. میری تو وارڈ, میرا جو گاؤں ہے چھپانی دار, اس کے اندر لائسنس ہی کوئی نہیں ہے. وہاں کا جو پروگرام تھا اس کو ہم نے ختم کیا, اور 5 تاریخ کا وہ پروگرام تھا. 7 تاریخ کو ہم صاحب ڈپٹی کمشنر سے ملے, اور ہم نے وہ اپنی گزارشات ان کے سامنے رکھی جس کی روتاد اور جو منٹس ہیں جو اس کے نتیجے کی تھی وہ میں آپ کو دوں گا, اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اس انٹرویو کے ساتھ جی میں منسلک کر دوں گا, اس کو آپ شیئر بھی کریں گے. اس پہ میں نے جو اس پہ دو ہی جو فیصلہ ہوئے, دو فیصلے ہوئے. ایک یہ کہ جی جو چک کا ڈیپو ہے اس کی الوکیشن کو بڑھایا جائے. عمر بھائی بات یہ ہے کہ جب الوکیشن یہاں پہ بڑھی تو 76,000 آئی تھنک عباس پور کی آبادی ہے, اور وہاں پہ جو آٹا تھا اس کی الوکیشن بڑھا کر 380 ٹن کیا گیا. چک کی جو الوکیشن تھی جس کے ساتھ 7 وارڈز ہیں اور تقریباً 30,000 کے لگ بھگ 25 سے 30,000 یا 35,000 25 و 35 کے درمیان کی جو آبادی ہے, 2002 میں ان کی الوکیشن ہے 110 ٹن, اور 2023 میں ان کی الوکیشن جناب ڈی ایف سی صاحب نے کم کر کے اس کی جو الوکیشن ہے وہ 95 ٹن کی انہوں نے. ہم نے یہ جو 2 گزارشات رکھی تو ڈی صاحب نے اس پہ حکم کیا کہ جی آپ آفتاب صاحب جو ہے وہ اپنی وارڈ کے لیے لائسنس تحریک کریں, اور اس پہ تو میں نے جناب سے عرض کیا ڈی صاحب سے کہ جی کیونکہ لائسنس کے پروسیس میں اگر میں جاؤں گا تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا, تو آپ یہ مہربانی فرمائیں کہ مجھے شارٹ ٹرم پہ پرمٹ دے دیا جائے آٹے کا. اب جس وقت یہ ساری بات ہوئی تو انہوں نے جو اس فائل پہ جو چیز لکھی ہوئی ہیں کچھ میرے پاس اس کی وہ ریکارڈ بھی ہے کیونکہ فائل ڈی ایف سی صاحب کے پاس ہی پڑی ہے.
उन्होंने एडीसी साहब को ताकीदन लिखा उस पर, वो आप देख लीजिएगा, वो भी शेयर कर लीजिएगा। वहाँ से लेके मैं 2-3 जो अहबाब थे उनसे मोहल्ले में मुशावरत करके कि जहाँ पे हमारे साथ नहीं है तो 3 फाइल्स पे हमारी, क्योंकि जो तीसरी फाइल थी वो गुज़श्ता 1.5 साल से प्रोसेस में है और उस पर नहीं काम हो रहा था। सैफ नाम है मेरे उस भाई का जिनकी वो फाइल थी, उस पर नहीं हो रहा था। तो डीसी साहब ने लिखा एडीसी साहब को, एडीसी साहब ने इनको लिखा, तो मैंने सोचा कि जी ये हो गया, बल्कि डीसी साहब के ऑफिस में लोगों ने कहा जी कि आपने ये बड़ा काम कर लिया। जो छापा निदार के वहाँ पे मेरे एक दोस्त वहाँ पे मुलाजिम है, उन्होंने कहा जी आपने बड़ा काम किया और ये हो गया आपका। अब उस पे इन्होंने बार बार मुझे एक चक्कर दूसरा चक्कर, पहले इन्होंने कहा जी मैं 3 नहीं 2 फाइलें करूंगा, मैंने कहा जी आप 2 ही कर लें। जो तीसरी थी कि इसका लाइसेंस हो जाएगा जी, आप इसको विड्रॉ करें, मैंने कहा जी इसको विड्रॉ करते हैं। आप 2 के लिए मुझे जो 30 बैग 25 बैग हफ्ते के जो आ रहे हैं वो आप मुझे दे दें, तो इसी पे हम ये कर लेते हैं आगे। 2 से फिर उन लड़कों को उनके चक्कर लगते रहे, डीएफसी साहब उनको चक्कर लगवाते रहे, गाए बगाए मैं भी उनके पास 2-3 बार गया। उन्होंने बल्कि ये एलोकेशन के हवाले से उनसे पहले बात हुई, उन्होंने वो रिकॉर्ड अपना निकाल के मुझे दिखाया कि ये सारा है। मैंने उनसे कहा कि जनाब आप क्योंकि महकमे के आदमी हैं, आप जिम्मेदार हैं, तो मुझे इस सारी चीज़ का नहीं पता। ये जो कागज़ के जो फाइलों के पेज भरे होते हैं, मुझे 2+2 फार्मूले का पता है कि 2002 में मेरी एलोकेशन थी 110 टन और 2023 में मेरी एलोकेशन है 95 टन। तो आप इस पे मेहरबानी फरमाएं। इस फाइल के लिए ये जो उमर भाई, ये जब 3 से 2 पे बात आई, उन्होंने कहा जी कि वो आपका हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने कहा जी कि नोट लिख लिया उन्होंने उस लड़के को जी कि इस पे जो प्रोसेस है वो किया जाए। तो मैं फिर इनके पास आया, मैंने कहा कि जनाब डीएफसी साहब ये लाइसेंस की बात नहीं हो रही है, ये परमिट की बात हो रही है और आर्जी बुनियादों पे भले से मैं अपने नाम पे इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि कल मुझसे बरादरी के लोग नाराज हों कि जी काउंसलर ने एक को आटा दे दिया दूसरे को नहीं दिया। तो ये 2-3 लोग हैं कि इन 2 लोगों के नाम पे आप मुझे ये प्रोसेस करके दे दें। मेरा इनके साथ तय हो गया, सारी चीज हुई। इन्होंने फिर उस पे जाके जब सारा नहीं किया, इन्होंने 2 फाइलों पे भी नहीं तो 10 या 12 रोज कबल, मुझे नहीं पता, सिंगोला के जो काउंसलर साहिबान है वो मुझे सुन रहे हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे उस मीटिंग में, उनकी मीटिंग थी इनके साथ। मैं अंदर गया, मैंने लड़के को भेजा जी कि आपके मेरे उनसे बात हो गई है तो ये आप 2 फाइलों पे आपका वो कर लेंगे। उन्होंने आके मुझे कहा कि 3-4 दिन में मसरूफी हो गया, तो उन्होंने आके कहा कि जी वो नहीं कर रहे। तो मैं खुद फाइल लेके, दोनों फाइलें लेके मैं जनाब के पास फिर पहुंच गया। मैंने उनसे अर्ज किया कि जनाब ये सारी चीज थी, तो आप इस पे अगर मुझे प्रोसेस में डालेंगे, इसी प्रोसेस में मेरी 1.5 साल से एक फाइल पड़ी हुई है, वो नहीं हो रहा है। 4-5 फाइलें और जो लोग करना चाह रहे थे वो थक कर के वो फेंक के चले गए। तो आप इस पे ये करें कि प्लीज आप इस पे मुझे दस्तखत करके दे दें। डीएफसी साहब ने कहा जी कि अच्छा ठीक है जी, मैं इसी रे करने कि तुझसे करो कि इस कन्ने कम अज कम इस संग आख्या उन्हें नाल आख्या या संग के इस संग जी तुझे जो फहरिस्त है वो आप अपनी लोगों की वो इसके साथ अटैच कर लें। मैंने कहा कि शायद इनका कोई प्रॉब्लम है या कोई महकमाना तौर पे ये कोई अपनी सेफ्टी के लिए कोई इनका प्रोसीजर है या जिस तरीके से भी उसमें, बल्कि जब 2 फाइलों की बात थी उसमें मैं पीछे रह गई। मैंने इनको कहा जी कि आपको डीसी साहब ने ये 2 इस पे ताकीदन, तो इन्होंने कहा जी कि मैं डीएफसी हूँ, मैं अपना जो मेरा महकमा है मैं उस महकमे का जिम्मेदार हूँ, तो मेरा स्टेटस जो है वो डीसी साहब के साथ इक्वल है। अब मेरे अपने मामलात में अगर कहीं पे कोई इंसानी मामलात हो तो उस पर डीसी साहब इसमें इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं। मैंने कहा जी एक ही करते हैं। अब एक वाली जब हुई, उन लोगों के होते हुए इन्होंने ये किया जी कि इन्होंने जब फहरिस्त की कही, मैंने फहरिस्त लगा के अल्लाह को गवाह रखकर आपसे कह रहा हूँ कि फिर 2-3-4 दिन में उस लड़के को भेजता रहा, वो यहाँ पे आता रहा। जिस दिन ये वाकया हुआ उससे 1 दिन पहले मैं इनके ऑफिस में आया, मुझे जनाब डीएफसी साहब मुझे नहीं मिले। जब लास्ट टाइम ये जो जिस दिन हमारा ये वाकया हुआ तो मेरा एक अजीज था, उसने कुरान पाक इश्क किया था, मैं उस प्रोग्राम से मेरे घर के जो अफराद थे वो मेरे साथ थे। मैंने गाड़ी नीचे रोकी और मैं सिर्फ इस एतबार में, क्योंकि मैं सुबह के टाइम सुबह 12 बजे तक मैंने उनका इंतजार किया, वो नहीं आया ऑफिस में, तो मैं एक इनके फूड इंस्पेक्टर में उनको फाइल लेके गया कि आपने इस पे डीएफसी साहब के साइन करवा लेने। मैं अल्लाह को गवाह रखकर ये बात आपसे कह रहा हूँ, वो इसलिए था कि उन्होंने मुझसे वादा किया हुआ है। अब एक चीज तय है, मैंने इसके साथ ये वो फहरिस्त है वो अटैच कर ली है, तो उन्होंने साइन ही करने। तो जिस वक्त मैं 3 बजे आया कि मैंने समझा कि इस पे दस्तखत हो चुकी होंगी तो मैं अपनी फाइल वापस ले लूं। तो जब मैं फाइल के लिए आया तो फाइल जहाँ पे थी वहीं थी, मैं लेके तो डीएफसी साहब के ऑफिस के अंदर चला गया। मैंने लाइटर मूड में बड़े उस अंदाज में मैंने सलाम किया उनको, और मैं फिर आपसे कहता हूँ कि अल्लाह की इज्जत की कसम है, उन्होंने इस तौर पे मुझे इग्नोर किया जैसे वो मुझे जानते ही नहीं है।
मैंने उनसे कहा कि सर ये फाइल थी तो आप इस पे, तो कहने लगे जी कि आप कल आ जाएं। एकदम ही उन्होंने कहा, मैं समझा कि वो मजाक कर रहे हैं अभी भी। मैंने हंसते हुए उनसे कहा कि डीएफसी साहब, मैं तकरीबन जुत्ती उन फटे ऊपर आई थी, से चक्कर ला रही छोड़े कि जनाब मैं दस्तखत, आप इस पे दस्तखत कर ले तो मैं ये लेके चला जाऊँ। मुझे कहने लगे जी कि ये मैंने इस पे नोट लिखा हुआ। मैंने कहा डीएफसी साहब आप, अच्छा मैं फिर आपको मैं हल्फन ये बात कहने के लिए तैयार हूँ, फिर भी मैं सोचूं कि मुझसे ये अजराए मजाक कर रहे हैं बात। मैं कुर्सी पे बैठ गया इतने टाइम में, उन्होंने मुझे नहीं कहा, वो अपनी कुर्सी पे बैठे ही उन्होंने सलाम किया था। मैं वहां पे बैठ गया, जैसे खुद वहां पे बैठ गया। मैंने उनसे कहा कि जी ये तो पुरानी बात है, तो पिछली बार आपने कहा था तो ये फरिश्ते इसके साथ लगी हुई हैं तो आप इस पे कर लें। फिर उन्होंने कहा जी कि नहीं जी सुपर सारा इसमें प्रोसेस पूरा करा। मैंने कहा जनाब आप कमाल करते हैं, मैंने आपको पिछले बार आपको कहा डी साहब ने ये लिखा हुआ है, आपने कहा जी कि डी साहब भी नहीं, 3 फाइलों से 2 से 1 पे भी आप नहीं कर रहे, आप यहाँ पे मुझे लिख के दे दे इसके ऊपर, जो बात आपकी एतराज है ना वो आप मुझे यहाँ पे इसके ऊपर लिखे हैं आप। मैं थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, मैं मानता हूँ इस बात को कि मैं ऊंची आवाज में बोला और मुझे बोलना भी, क्योंकि जिस वक्त मुझे बात की समझ आए, मैं ऊंची आवाज में बोला तो मुझे एकदम कहते हैं कि ऊंची आवाज ही गल ना कर, ऊंची आवाज ही गल ना कर। मैंने आगे बढ़ के उनको कहा कि जनाब मैं कोई अपनी जाती बात लेके आपके पास नहीं आया हुआ हूँ, मैं एक मुंतखब काउंसलर हूँ। मैंने इस तरह अपना किया, मैंने कहा कि मैं मुंतखब काउंसलर हूँ और मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए आपके पास पिछले 1.5 माह से चक्कर लगा रहा हूँ, इस फाइल पे आप दस्तखत कर दें। मैंने जोर दे, और उन्होंने इस जगह से मेरा पकड़ के मुझे कहते हैं क्या कर रहा हूँ मैं, तू काउंसलर थी। अब आप उसके बाद मुझे ये बताएं, कल से लेके परसों से लेके जब से ये वाकया उमर, मैं पूरे जो आपके नाज़रीन है वो सारे इस चीज को, जो कल उन्होंने गुफ्तगू की वो देखें, जो उनकी प्रेस रिलीज है वो देखें, जो उन्होंने दरखास्त दी पुलिस को वो सारा देखें। ये सारा करने के बाद जैसे मैं वहां से नीचे आया, मैं अल्लाह को गवाह रखकर कलमा पढ़कर ये कहता हूँ कि मैं सीधा चला गया डी साहब के पास, और मैंने जाके उनसे कहा कि जनाब उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है, तो ये मेरा मामला है। तो मैंने दरखास्त में उनको फिर कहा कि जी ऐसू कर की करी दे छोड़ा डी साहब। मैं वो देके बाहर आया तो यहाँ बाहर पुलिस खड़ी थी, उन्होंने मुझे आके कहा जी के मुझसे पूछ ले जी आप आफ्ताबारी, मैंने कहा जी आफ्ताबारी, उन्होंने कहा जी हमने आपको लेके जाना है। अब उमर भाई आप मुझे ये बताएं, एक मुंतखब काउंसलर है, आप उसके गिरेबान को भी पकड़े, 1.5 माह आप उसको चलाएंगे, उसके बाद आप कस्में उठा के आप वो पाक साहब बन जाए, ये चीज नहीं हो सकती। इसकी तो किसी तौर हमायत नहीं की जा सकती आफ्ताब साहब के, जो आप बता रहे हैं अगर ऐसा हुआ है रियलिटी में तो ये तो बहुत गलत है, इसकी हमायत बिल्कुल नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि उन्होंने कल जो फाइल दिखाई, उन्होंने कहा कि देखें जी ये फाइल इनकम्प्लीट थी, ये चीज़ें मिसिंग थी, तो आप नहीं समझते कि एक फॉर्मेलिटी थी, सो जो भी था तो वो पहले वो फुलफिल होनी चाहिए थी, उसके बाद चीज़ें आगे जाती, जो असल में इस तनाज़े की एक वजह बनी। देखें उमर भाई, मैं फिर आपसे अर्ज करूं कि अल्लाह गवाह इस बात का कि वो बात को अब ट्विस्ट कर रहे हैं, इधर उधर घुमा रहे हैं उसको। मेरे भाई 1.5 साल से एक फाइल प्रोसेस में है, उसका लाइसेंस नहीं हो रहा था। मैंने ये डीसी साहब से आप जाके उनका मौक़िफ़ ले लें, उनसे पूछ लें, मेरी फाइल पे आप देख लें, उस सारी चीज पे देख लें, लफ्ज परमानेंट और लाइसेंस में फर्क है उमर भाई। जब नहीं हो रहा था मेरा लाइसेंस तो मैंने कहा कि आर्जी तौर पे मुझे परमिट दे दे कि अच्छा, मैं थोड़ी देर कबल एक ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू आपसे हो रही थी, क्या वो अल्फाज आप फिर दोहराना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आपको देख रहे हैं। मैंने आपको अंदर भी कहा था कि मैं अल्लाह की इज्जत और किबरियाई की कसम खा के कहता हूँ कि मेरा डीएफसी साहब के साथ कोई जाती तनाज़ा नहीं है। जितना उन्होंने मुझे जलील करना था, जितना उन्होंने मुझे बेइज्जत करना था, मैं सिर्फ उस सारी जलालत को इसलिए बर्दाश्त करता रहा कि मेरे लोगों को, मेरे ऊपर चढ़े हुए लोग आके मुझसे बात करते हैं, मुझसे आटा मांगते हैं। मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंदर भी आपसे कहा था मेरा उनके साथ कोई जाती अनाद नहीं, कोई मामला नहीं। उन्होंने जहाँ तक मेरी इज्जत के साथ खेलना था उन्होंने खेला, और एट द एंड ऑफ डे उन्होंने मुझे अरेस्ट करवाया। और मैं हैरान हूँ अपनी पुलिस के लिए कि एक मुंतखब नुमाइंदा लोगों के लिए आटा मांगने के लिए जाता है, आप उसको डाल देते हैं जाके सलाहों के पीछे। लेकिन आफ्ताब साहब उसमें आप ये नहीं समझते कि मतलब जाहिर सी बात है कमरे के अंदर क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता, पुलिस को भी नहीं पता, लेकिन जहाँ पे आप चीजों को दिखाएंगे लोगों को कि ये गलत था, तो उसमें आप नहीं समझते कि इदारों का फिर इसमें इन्वॉल्वमेंट कितनी बाकी रह जाती है। देखे ना जी, सीधी सी बात थी कि चलें जी फर्ज कर लेते हैं मैंने गलत किया था। मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काउंसलर हूँ, मेरे ऊपर मेयर बैठते हैं, फादर ऑफ द सिटी हैं, उनको ये चाहिए था कि वो इनके नॉलेज में बात लाते।
उनको ये चाहिए था कि अगर उन्होंने आप उस दरखास्त की आप वे ऑफ टॉक देखें, आपकी धरती से मुझे शिकवा था, आपने वो क्लियर किया, आपने तो वो मिन्नन वही जो आप वो वर्डिंग देखें, मेरी अभी की वर्डिंग आप देखें, मैंने रात को जो मैं अपनी जो सोशल मीडिया पे जो किया है, जो आगे करूंगा उस पर देखें कि आप उनका लहजा देखें, वो ऑफिसर कम और साहब बहादुर ज्यादा बने हुए, उनको सियासत का आप कल मुझे बताएं, मैं आपकी वसातत से, आप सीनियर मोस्ट साफी हैं, आपको हजारों लोग देखते हैं, आप एक पब्लिक सर्वेंट का क्या काम बनता है कि वो एक मुंतखब नुमाइंदे को कि जो वोट लेके बल्दिया के अंदर आ रहा है उसको वो इतने बदतमीज़ाना अंदाज में वो बार बार डिस्कस करे, और उसका क्या काम बनता है कि वो पब्लिक टॉक करे, वो जाके मीडिया पे अपने मौक़िफ़ थे, वो वाया अपने महकमे की क्यों नहीं मैंने कल भी आफ्ताब साहब आपसे रब्ता भी किया था उस सारे इंटरव्यू के बाद कि मैं आपका भी मौक़िफ़ लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी मसरूफियत थी, आप इस वजह से नहीं मिल सके। मैं अभी भी बरमला ये कहता हूँ कि जितने भी जो कल इंटरव्यूज आपने देखे उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसमें मेरी ज़ाती राय कोई भी शामिल नहीं है। इवन कि अभी जो इंटरव्यू देख रहे हैं इसमें भी मेरी कोई ज़ाती राय शामिल नहीं है। जो चीज़ें जैसे वकूअ पज़ीर हुई वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आफ्ताब साहब, अब आप क्या समझते हैं कि इस सारे सिलसिले के बाद अब हालात किस तरफ जाएंगे, या क्या अब आपने नेक्स्ट सोचा है? देखें जी, मैं एक जिम्मेदार शहरी नहीं, मैं एक नुमाइंदा हूँ आवाम का, लोकल असेंबली है, मेरी अतक इज़्ज़त जो है, जो मेरी इंसल्ट की गई, मैं ये समझता हूँ कि वो आज़ाद कश्मीर के बिल उमूम हर कौंसलर की इंसल्ट है, वो उसकी तौहीन है। मेरी ये बात, मैं ओथ पे ऑन ओथ ये सारी बातें कहने के तैयार हूँ। डिप्टी कमिश्नर इस चीज़ के गवाह हैं, एडीसी साहब के पास मेरे 2 चक्कर हैं, उनके पास वो सारी जो फाइलें लेके उनके पास में गया, फिर इनके पास जो सारी गया, वो सारी चीज़ें अब हमने आज इजलास किया है यहाँ पे, और मुतफिका करारदाद मंजूर हुई है कि 2 नुकाती करारदाद है। अव्वल ये कि ये जो नापसंदीदा तरीन शख्स हैं ये, इनको यहाँ से ज़िला बदर किया जाए, तो वो उन्होंने मुझे बहुत गलत अल्फाज में, लेकिन मुझे जेब नहीं देता, मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, वो क्योंकि वो साहब बहादुर हैं, वो एक ऑफिसर हैं, ऑफिसर का जो है वो अपने ऑफिसर के अंदाज में बात कर रहे हैं। मैं ऑफिसर नहीं हूँ, मैं लोगों का चौकीदार हूँ, मैं अपनी वार्ड का, अपने शहर का चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार की हैसियत से जब तक इस तरह का रवैये जब तक जारी रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं होता। और मैं बरमला इसकी वसातत से आपको मैं आज कहना चाह रहा हूँ, आपके चैनल की वसातत से, कि हमने जो करारदाद पास किया 7 दिन तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद हम इंतजामिया पे छोड़ेंगे। मैं ये देखूंगा कि जनाब वज़ीर आज़म और यहाँ की जो इंतजामिया है वो इस मामले का किस अंदाज में नोटिस लेती है, और अगर एक शख्स के लिए 1.5 लाख की आबादी के लोग अगर कह रहे हैं ये नापसंदीदा आदमी है, तो मैं ये समझता हूँ